वक्त बदल गया है सर. This change is more than a paradigm shift in leadership. It's a clear rejection of authoritativeness. It's a rejection of arrogance, divisive politics, and empty promises. The message from the electorate of this country is loud and clear. वक्त बदल गया है. Today is exactly 50 days since the rejection. But PM Modi refuses to accept the reality. He is running a coalition government and he wants everyone to believe that sab changa si. Everything is well, everything is good. So the defense minister is the same, the commerce minister is the same, the home minister is the same, the external affairs minister is the same, Speaker is also same. the finance minister is also same. Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो बेंच बजाने वालों का थोड़ा नंबर कमती हो गया है. The number of cheerleaders have gone down because the people of this country denied them an access to this temple of democracy, sir. This is a big change. Amidst all the failures in the last decade, the PM and his government achieved something truly remarkable. A world-class collection of abbreviations. With more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeve. Every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Who need plain names, sir, when you can have a whole vocabulary of letters to decimal? 110 names, just imagine. And why I am talking about abbreviations or acronyms? Because I want to reply to this government in a language they understand. Sir, from ART means accountability, responsibility, transparency, to Hriday, which means Heritage Development and Augmentation Yojana, to Udan, which means Ude Desh ke Aam Nagarik, to Gobar, which means galvanizing organic bio-agro resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country. 110 names. And like I said, I want to reply to this government in a language that this government and the union minister, especially the union finance minister, understand. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा. यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती. तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है. और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है. अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है. अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए. नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं. टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है. टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में है. और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं. टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है, दिल्ली भी भारत में आता है. टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी. खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था,
कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे हैं? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया। चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बड़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion US dollar, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion US dollars. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, एमओयू साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था, क्या यही करार किया था? आप बताइए। अब अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बातचीत हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। आरबीआई, केएलईएमएस, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल और सर्विसेज, इसके माध्यम से देश का एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। मैं आपको यहां आंकड़े दे दूं, जहां 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 2.9 करोड़ नौकरी दी गई थी। वही मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ की नौकरी दी गई है। 2.9 करोड़ वर्सेस 17 करोड़। यूपीए की कार्यकाल में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट मात्र 6% था और वही मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट का रेट 6% से बढ़ के 36%, 36% हुआ है। और कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपीए भी फेल हुई, एनडीए भी फेल हुई। अरे राहुल जी, यूपीए तो फेल हुई, आप फेल हुए मतलब यूपीए, वो आप जो है वो 8 तारीख को फेल होगी। आप तो फेल हुए ही हुए हैं, मगर हम डिस्टिंक्शन के साथ पास